बदलेंगे सोच, होगा तब सबका उद्धार। भारत भूमि के गौरव का करे प्रचार। Thank you, Aravindaksh Prabhu. Thank you, Chittahari Prabhu. Srila Prabhupada ki! So we want to start today's session by asking a very important question to Srila Kavichandra Swami Maharaj, who has been following Srila Prabhupada in more ways than one in so many avenues, so many parts of the world. Maharaj, I want to start by asking you this question. Why is reading of Srila Prabhupada's books emphasized so much, especially for young devotees like you, thousands of them? Should young devotees read Srila Prabhupada's books? How can they develop the habit? How can they develop greater clarity, conviction, commitment to on a daily basis reading, studying Srila Prabhupada's books, and what impact will it make on them? We'd like you to kindly enlighten us. Hare Krishna. Thank you very much. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Desa Dharani Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. I'd first like to say that to see that so many are attending and staying for many, many hours for this program is very, very enlivening. It's very encouraging to see the future. People want Krishna, they want to hear. So, of course, Prabhupada's books are the basis. Everywhere we had many, many experiences, and I can say later, but I remember years ago in Bombay there was a big billboard that said, "You are what you read." Read the Bombay Times. So that's a fact. We are what we read. So if we read what Srila Prabhupada has given us, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, with all the realizations of all the previous acharyas, we become like that. When we read a book, we're associating with the author of that book. And Prabhupada told us many times, my books are more important than I am. Because, we want to have personal association. That's very limited how many people can personally massage the Guru or be with him at the same time. But the books, millions of people can be reading the book at the same time, and in fact, nowadays there are 24 hours a day books are being distributed. But Prabhupada, he stressed both. They're not only for distributing, they're for reading. He put so much effort, so much time into translating in the night without sleep when everybody else is sleeping. And then not only that, but he made this society where people can live according to the books and others can come and experience the living book. So when we read about Lord Chaitanya is there. One place Prabhupada wrote, Narada Muni, who is so kindly appearing on these pages. So we get asked all the time, because I was around at the time of Srila Prabhupada, what is your experience? My experience is, I was fortunate to attend classes where he was speaking, but otherwise it's all from the books. And it's very intimate. He said he put, his best time of the day into these books because they're forever. They're the law books of mankind. And we need to read them. It's like medicine, and like breathing, like food, daily to keep our mind, because this Kali Yuga especially, so much nonsense is everywhere.
you might have all experienced. I know if I'm in somebody's house, especially in an apartment building, if you click on your Wi-Fi, you get like 30, 40 signals. They're all zapping through your head, all this stuff, and full of everything but Krishna. But the power of Srila Prabhupada, who's empowered, representative of Vyasadeva. Vyasadeva also made books. He wrote books. Before that, people could remember the Vedas. He wrote, and all the acharyas have been writing books. Srila Prabhupada especially wrote books, not only in Sanskrit language. He arranged to have them translated into hundreds of languages. So we're just hoping everyone will read. You are what you read. If we read Srimad Bhagavatam, you'll become a walking Srimad Bhagavatam. You'll become a living Srimad Bhagavatam. If we're reading Bhagavad Gita daily, I know just recently I started reading more Bhagavad Gita daily, and the realization was I should read more. It should be more and more. All the books. There's just it's a spiritual world. The Goloka Premadana Harinama Sankirtana, the holy name is coming down. The books are giving us, who is this Krishna that we're chanting, that we're offering food to, and why should we worship him? And we get all this information given to us by all the great acharyas. And it's not just for knowledge. We can read to try to get some knowledge and defeat someone in an argument, right? But that's not what it's all about. It's for association. It's for experience. The experience of being with the Pandavas, being with Yudhishthira, being with Draupadi, being with Gandhari, being with Radharani, the gopis, Mother Yasoda. Now this month is the Damodar month, and these leelas of Krishna are so sublime, so wonderful, and they're charming the world. And we can read them again and again and again. I know before, I always read a lot of books. I don't know if any books I ever read twice, but after a while I never finished a book. I just say it's the same junk again, but try another one. And finally I got the Bhagavad Gita, a Nectar Devotion. It was what we mostly got when I joined. We didn't even have Bhagavad Gita. Now we have all the books. You have them all online in so many different languages. You have audio books, we have e-books, we have printed books. Printed books have a special advantage that when we're reading the printed book, we can't just push a button to check out, what's the latest news or anything. There's distractions. It's more like can really pull us right into the, without any distraction. So we're just begging everybody and begging ourselves, read these books. We distribute so many books, and sometimes we go in a house, they have the Srimad Bhagavatam set, but they haven't taken off the shrink wrap yet. So we want you to read it. That's why we have online reading. We have so many facilities to study, know what, but to experience this association with these great souls, with Krishna himself, with, all the acharyas, all the avatars. I went to that movie, Nrsimha Avatar. Yeah, and it was nice, but I was thinking I'd rather read it, because I read it many times. And when you read it, it's a whole other world. It's not, it just really can overpower the soul and keep us out from addiction. We want to be addicted to reading the books, actually. Addiction
Guru Prasad Maharaj said can be good. It just depends on what you're addicted to. So develop this habit of reading the book every day, the Bhagavad Gita or whatever book of Srila Prabhupada. And he stressed it so much. Please read, experience, read it again. If you don't understand it, read it again. And if read it again and read it again. Because Krishna reveals himself. As we keep trying, more and more is revealed. I know myself, every time I read Bhagavad Gita, I think, well, I never read this before. You know, even though I know a lot of it, you know, by memory, it's always a new and experience because Krishna is unlimited. So we're just begging everybody, all of you have incredible attention span to be sitting here all this time. So just focus it in. Sometime during the day, best thing, first thing, read Bhagavad Gita for some time. Read it before sleeping, before studying. Everything in your life will just become more and more sublime. Thank you very much, Maharaj. Hare Krishna. हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू वेरी मच। महाराज ने बहुत ही सुंदर बताया कैसे कि श्रील प्रभुपाद ने कितने मेहनत करके इन ग्रंथों की रचना करी, जिस वजह से हमें नियमित रूप से उनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रंथ के साथ संग करने से उस लेखक के साथ भी हमारा संग हमें प्राप्त होता है और उससे यहाँ पता चलता है कि जितने भी दिव्य घटनाएं हैं, लीलाएं हैं, उनके साथ हमारा प्रत्यक्ष संग स्थापित होता है। सो रिपीट आफ्टर मी, रीड, बोलिए बोलिए, रीड टू लीड, रीड टू लीड, रीड टू लीड। धन्यवाद। जितना अधिक हम प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करेंगे उतना अधिक हमारे अंदर सारे गुण विकसित होंगे। अब मैं परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज से प्रश्न करना चाहता हूं कि आज के जितने भी नवयुवक हैं भौतिकता में अत्यधिक लिप्त देखे जा रहे हैं, उनके अंदर किसी भी प्रकार के जीवन के चरम लक्ष्य के बारे में कोई भी किसी भी प्रकार का विचारधारा ही नहीं उनमें, और क्या हम क्या करें कि हम इन नवयुवकों को सही मार्गदर्शन दें और विशेषतया हमें इन युवकों पर क्यों इतना ध्यान देना चाहिए? क्या ऐसा तो नहीं कि और भी इतने सारे लोग हैं समाज में कि क्यों युवकों पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, इनके ऊपर क्यों ध्यान दिया जाना चाहिए? हरे कृष्ण। तो प्रश्न उठता है कि देश बदलने के लिए हम युवा शक्ति के ऊपर इतने जोर क्यों देते हैं? युवावस्था ही एक ऐसी अवस्था है जो देश के भविष्य है। अगर उनको बदला जाए तो देश को बदला जा सकता है, कोई आगे चल कर के देश के भविष्य बनेंगे। जैसे कोई कच्चा मिट्टी में कोई मूर्ति बनाता है तो कच्चा अवस्था में जो भी डिजाइन देगा वो हमेशा के लिए रहेगा, सूख जाने के बाद फिर और नहीं मुड़ेगा। तो इसलिए युवावस्था ही अवस्था है जिसमें उनके सीखने का शक्ति, ग्रास्पिंग करने का शक्ति और भविष्य कुछ बनने का सपना, सब कुछ इसी समय में साकार होता है। तो इसलिए युवावस्था को ही सुधारने के लिए विशेष प्रयास होना चाहिए। महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। अब महाराज जी की ओर से मैं आप लोग के लिए एक और स्लोगन दे रहा हूं, मेरे साथ बोलिए, जब तक एक भक्त नहीं बनाएंगे तब तक नया साल नहीं मनाएंगे। एक भक्त नया साल, एक भक्त नहीं नया साल नहीं। थैंक यू वेरी मच। आप सबसे अनुरोध है कि आप इस संकल्प को अपने हृदय में ठान लें और मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज का कि उन्होंने इसका उत्तर सटीक दिया। अब मैं अनुरोध करूंगा परम पूज्य भक्ति प्रचार परिव्राजक स्वामी महाराज से कि इस प्रश्न का उत्तर दें। यू कैन आंसर इन इंग्लिश और हिंदी एज यू चूज महाराज, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्रश्न ये है कि श्रील प्रभुपाद ने प्रचार के ऊपर इतना जोर क्यों दिया? ये मिशनरी स्पिरिट या दूसरों को कृष्ण का संदेश देने में
इतना जोर क्यों दिया गया, और क्या हम ऐसा करें कि हमारे अंदर ये जिम्मेदारी की या दायित्व की भावना आ जाए, हमारे अंदर से वो इनर कॉलिंग आ जाए कि दूसरों को भी श्रीला प्रभुपाद का और कृष्ण का संदेश हम प्रदान करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा। जोर से बोलिए, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तभी हम लोगों को प्रश्न पूछा जा रहा है। आप लोगों के प्रश्न है कब ये अनुष्ठान अब खत्म होगा, क्योंकि आप पूरा दिन बैठ के सुन रहे हो। तो प्रचार के बारे में पूछा गया है। तो दो प्रकार के वैष्णव होते हैं, एक है गोष्ठानंदी और एक है भजनानंदी। जो भजनानंदी वैष्णव होते हैं वो भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, आनंद में रहते हैं। लेकिन जो गोष्ठानंदी वैष्णव है वो खुद को सिर्फ खुश नहीं रखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं पूरा दुनिया वैकुंठ बन जाए। श्रील प्रभुपाद जी ऐसे चाहते थे, ये दुनिया पूरा वैकुंठ बन जाए। चैतन्य महाप्रभु बताए, भारत भूमिते हইল मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। तो महाप्रभु कलियुग में अवतीर्ण हुए, भगवान स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने भारत में जो जन्म लिए हैं उसके लिए अलग सा कुछ बताया, क्योंकि मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उससे भी ज़्यादा दुर्लभ है भारत में मनुष्य जन्म को प्राप्त करना। लेकिन जब हम लोगों को कुछ दुर्लभ चीज़ मिलता है, उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है। तो भारत में जो जन्म लिया है उसका जिम्मेदारी है उसको भक्त बनना। उसको बोलता है जन्मो सार्थक। जन्म मनुष्य जन्म तब सार्थक होगा जब हम लोग भगवान का भक्त बनेंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ों का अभाव नहीं है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बोलते थे, इस दुनिया में सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ों का अभाव है, वो है कृष्ण भक्ति का अभाव, और उसके कारण लोग दुखी हैं। तो दुखी को सुखी बनाना है तो कृष्ण भक्ति जरूरत है। इसलिए खुद को कृष्ण भक्त बनना चाहिए और बाकी सब लोगों को भी कृष्ण भक्त बनाना चाहिए। यही निर्देश चैतन्य महाप्रभु ने सब मनुष्य को दिया है जो भारत में विशेष करके जन्म लिया है। अभय चरण दे श्रील प्रभुपाद जी का पूर्वाश्रम का नाम, वो जब मिले 1922 में कलकत्ता में उनके गुरुदेव के साथ, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद उनको बताया, आप शिक्षित युवक हो, आपको क्या करना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उसको भारत के बाहर विदेश में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करना चाहिए। तब अभय चरण दे ने बताया सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को, अभी तो भारत पराधीन है, ब्रिटिश शासन के अंदर है, तो अभी ब्रिटिश शासन के अधीन में है, तो अभी क्या करना चाहिए, भारत को स्वाधीन बनाना चाहिए। तो उन्होंने सोचा बहुत अच्छा चीज़ बताया, लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बताया, पॉलिटिकल सिचुएशंस आर टेम्पोररी, ये सब चीज चलता रहेगा, बट प्रीचिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इटर्नल, इट कैनॉट वेट फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो ये चीज़ जब बताया तब अभय चरण दे श्रील प्रभुपाद को पता चला ये बहुत जरूरी है इसका प्रचार करना। तो इसीलिए हम लोगों को दुनिया में शांति सुख आनंद लेके आना है,
तो कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत जरूरी है। तो बताया गया है इस दुनिया में लोग काम करते हैं क्यों? लोग कुछ पाना चाहते हैं, मेरे को क्या मिलेगा ये सोच रहता है। लेकिन जो भक्त होते हैं वो सोचते हैं मेरे को क्या देना है। हम लोग प्यार के बात करते हैं, लव, आई लव यू, ये सब बोलते हैं, लेकिन वैष्णव लोग जानते हैं कैसे प्यार करना है। तो दो चीज़ है, एक है पैशन और दूसरा है कॉम्पैशन। तो इस दुनिया में पैशन के कारण लोग कार्य करता है, और इस पैशन का लक्ष्य क्या है? मेरे को क्या मिलेगा, गेट एंड देन फॉरगेट। लेकिन कॉम्पैशन का मतलब कुछ देना, वही हमारे परंपरा का शिक्षाएं हैं। तो इसीलिए हम लोगों को देना चाहिए। तो जो वैष्णव होते हैं वो देते हैं, क्या देते हैं? कृष्ण भक्ति देते हैं। गिव 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 एंड देन फॉरगिव। इसीलिए हम लोगों को इस दुनिया को वैकुंठ बनाना चाहिए। इसीलिए हम लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार दुनिया भर करना चाहिए। यही शिक्षा श्रील प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिया है। हरे कृष्णा। थैंक यू महाराज। श्रील प्रभुपाद ने प्रचार के बारे में हमें क्या संदेश दिया? प्रचार ही सार है। बोलिए, प्रचार ही सार है। थैंक यू वेरी मच ईश्वरनाथ भक्ति प्रचार परिव्राजक जगत स्वामी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज के नाम भी वैसे ही है, प्रचारक भी हैं, परिव्राजक भी हैं। अब मैं अनुरोध करूंगा इस ग्रेस मोहन प्रभु से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि आजकल वर्तमान युग में इतनी सारी समस्याएं हैं और सनातन धर्म के ऊपर विशेषतया कई प्रकार के आक्रमण हो रहे हैं। हम आपसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि ऐसा हम क्या करें, विशेषतः नवयुवक या हमारी वर्तमान प्रणाली में, कि क्या व्यवहारिक कदम उठाएं जिससे कि सनातन धर्म के विरुद्ध जो कदम उठाए जा रहे हैं उनके प्रति सही रवैया क्या हम अपनाएं, कैसे इनसे अपने आप को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है कि भारतवर्ष में अभी वैदिक संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहा है, और ये आक्रमण जो है भारी रूप से भी है, आंतरिक रूप से भी है। हमारे सनातन धर्म के ऊपर आक्रमण है, और कई ऐसे जो तत्व हैं जो इसको नष्ट करने के लिए योजनाएं बना रहे हैं। मंदिरों के ऊपर आक्रमण हो रहा है, यहाँ तक कि हमारे मंदिर की व्यवस्था में भी आक्रमण कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो प्रसाद बनता है उसमें भी कुछ मिलाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ऐसे घुसपैठ जो हैं योजना बना रहे हैं कि हमारे देश के जो बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ पर जो लोग जाते हैं बड़ी तादाद में, उन लोगों को कैसे रोका जाए, उनकी श्रद्धा कैसे तोड़ी जाए। ये कहानी बहुत पुरानी है। इतिहास हमारा बहुत अपने आप में ही सब कुछ प्रकट करने वाला है। अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, जब भारत के ऊपर राज्य कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ये जो भारत है यहाँ की संस्कृति बड़ी मजबूत है, और संस्कृति के ऊपर जब तक आक्रमण नहीं होगा इस देश का विभाजन नहीं हो सकता है। और उसका एक ही तरीका है, इनकी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसके ऊपर आक्रमण किया जाए, इनके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर आक्रमण किया जाए। ये बताया जाए कि गीता, रामायण, महाभारत ये सब एक कल्पना है, माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी शब्द जो है अपने आप में, ये शब्द जो है अपने आप में शब्द ही गलत है ये, क्योंकि माइथोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है? मिथ, यानी कि कल्पना। उनके कहने का मतलब है कि रामायण, महाभारत, भगवत गीता ये कल्पना है। अब देखिए ये शब्द, देखिए अपने आप में कितना अटपटा है। माइथोलॉजी, अब देखिए शब्द को दो भाग में बांटिए। अब
माइथोलॉजी यानी कि कल्पना का अध्ययन। बड़े ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। माइथोलॉजी यानी कि कल्पना का अध्ययन। कल्पना का अध्ययन करने की आवश्यकता क्या? वो तो कल्पना है। अगर कल्पना है तो वो कल्पना ही है, उसका अध्ययन क्या किया जाएगा फिर? तो ये कहते ना कि रामायण महाभारत गीता ये सब माइथोलॉजी है, ये कल्पना है, इसका अध्ययन ना करो, ये कहना ही निरर्थक है, क्योंकि कल्पना का तो कभी अध्ययन किया ही नहीं जाता है। ये शब्द ही गलत है माइथोलॉजी। पहली बात तो ये है, ये माइथोलॉजी शब्द ही गलत है, क्योंकि जो माइथोलॉजी शब्द का रचना जिन्होंने किया है वो ही कल्पना में है, वो मनोकल्पना में है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में प्रवेश करके, शिक्षा प्रणाली में प्रवेश करके सबसे पहले ये साबित किया, आप जो रामायण महाभारत पढ़ाते हैं, भगवद गीता पढ़ाते हैं, ये केवल एक कोरी कल्पना है, ये सच्चाई नहीं है। इस तरह से विश्वास जो है हमारे भारतवासियों ने धीरे धीरे खोया हमारे अपने ही ग्रंथों के ऊपर। और उसके बाद फिर उन्होंने अपने वस्त्र यहाँ इंट्रोड्यूस किए, धोती कुर्ता लोगों ने छोड़ा, ट्राउजर्स पहनना शुरू किया, सूट्स पहनना शुरू किया। और ये बताने के लिए कि हम अंग्रेज लोग जो हैं आपसे ज़्यादा सभ्य हैं, ये चादर पहनना, ये धोती पहनना, ये तो असभ्य लोगों का वस्त्र है। सभ्य लोग तो सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, जूते पहनते हैं। इसको संस्कृति लोग ये बोलते हैं, ये है कल्चर, ये है सिविलाइजेशन। तो इस तरह से आक्रमण किया गया था हमारे देश में। और वो जो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये आज भी चला जा रहा है हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में। और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भगवद गीता रामायण महाभारत को हमारे पाठ्यक्रम से जो है बिल्कुल ही हटा दिया। हमारे ज़माने में बचपन में मोरल एजुकेशन हुआ करता था, वो मोरल एजुकेशन भी ख़त्म हो गया है। ये सब्जेक्ट ही इनवैलिड कर दिया गया है, निरर्थक कर दिया गया है। हमारे स्कूल कॉलेजेस में मोरल वैल्यूज़ के ऊपर कोई शिक्षा नहीं दी जाती है, कोई शिक्षा नहीं है। यानी कि साक्षात पशु कैसे बनना है, इसी की शिक्षा दी जा रही है आजकल के पाठशाला में, विश्वविद्यालय में। यही सिखाया जा रहा है कि आप नास्तिक कैसे बने, और साइंस के नाम पर, टेक्नोलॉजी के नाम पर सबको सोफिस्टिकेटेड डीलक्स एडिशन, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एनिमल बनाया जा रहा है। अमेरिका में, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड टावर, ट्विन टावर्स, जानते हैं इस दोनों बिल्डिंग के ऊपर अटैक हुआ था। ये दोनों बिल्डिंग डेमोलिश हो गए थे, प्लेन सीधा उसके अंदर क्रैश कर गया, दोनों बिल्डिंगें गिर गई। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट से एक न्यूज़ रिपोर्टर ने पूछा, उन्होंने कहा कि आप एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हमें भगवान पे विश्वास करना चाहिए, इन गॉड वी ट्रस्ट, उनकी करेंसी में लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। श्रील प्रभुपाद जी बड़ा अच्छा बताते थे, अरे आप ट्रस्ट कैसे करोगे, आप तो यही नहीं जानते हो कि भगवान कौन है। इफ़ यू डोंट नो हु इज़ गॉड, हाउ कैन यू ट्रस्ट इन हिम। तो पहले तो ये तो जानो कि भगवान कौन है, आप ट्रस्ट कैसे करोगे। आप लिख रहे हैं करेंसी में इन गॉड वी ट्रस्ट। तो आप ये बताइए कि जब ये बिल्डिंग नीचे गिर रही थी, उस समय आपके भगवान ने इनकी रक्षा क्यों नहीं की। ये रिपोर्टर ने पूछा उस क्रिश्चियन प्रीस्ट से। क्रिश्चियन प्रीस्ट ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उसने कहा, आपने बाइबल को, गॉड के कंसेप्ट को स्कूल के सिलेबस से, कॉलेज के सिलेबस से आपने बिल्कुल हटा दिया। हटाते वक्त आपको याद नहीं आया कि आगे चलकर क्या होने वाला है। आज ये बिल्डिंग नीचे गिर गई, अब आपको भगवान याद आ रहे हैं। भूल गए वो दिन जब आपने अपने ही स्कूल, अपने ही कॉलेजेस से आपने बाइबल को सिलेबस से हटा दिया, धर्म को ही आपने नष्ट कर दिया। तो इसलिए ये इस प्रकार आक्रमण हुआ है हमारी वैदिक संस्कृति के ऊपर।
वैदिक संस्कृति जब तक हमारे देश में जीवित रहेगी। याद रखिएगा, एक बड़ा अच्छा यहाँ पे गाना सुनाया गया था, वैदिक संस्कृति जब इसका प्रभाव था हमारे देश में जोर शोर से, तो हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, अब तो प्लास्टिक की चिड़िया हो गई है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। आप सबके लिए एक संस्कृत का श्लोक है जिसको दोहराना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। धन्यवाद। I want to ask His Grace Patri Prabhu this very important question. How is it that the youth of Sanatan India can develop the right mood towards developing Sanatani values and continue in that direction? अरे मैं सोचा भारत में जो है सब लोग हिंदी बात करते हैं, मुझसे जो है वो अंग्रेजी बात करने सब लोग विदेश नकल कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो है देखिए घर का जोगी जोगरा, बाहर का जोगी सिद्ध। आश्चर्य की बात ये है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल 2 मिनट ध्यान देना चाहता हूं। ध्यानम सहना भवतु सहना भुनातु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आजकल जो जिम्मेवारी अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिम्मत होना चाहिए अपना संस्कृति जो है स्थापना करने के लिए। भगवान आते ही संसार में धर्मा संस्थापनार्थया संभवामि युगे युगे। अर्जुन आप मेरा निमित्त हो जाओ, जो कल करे तो आज, जो आज करे तो अब। पाव में प्रलय होगी, बहुरी करोगे कब। आजकल संसार नरक में जा रहा है क्योंकि सब लोग जो है अपना रास्ता नहीं जानते हैं। नते विदुस्वर्थ गतिम ही विष्णुम दुरासया ही बहिरथ मानिना अंधा यंतंदरुपनीय मानस तिपि शतंत्र मुरुदम निबंध। एक अंडा दूसरा अंडे को पकड़ करके दोनों कुआं में गिर जाएगा। इसलिए कहते हैं जो देश, जो परिवार अपना इतिहास स्मरण नहीं करते हैं, उसी देश के लिए भविष्य है ही नहीं। अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इट्स नेवर लेट टू टेक यू टर्न हाउएवर लॉन्ग यू आर ट्रेवलिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। जब जगे तब सवेरा। और सब लोग जानते हैं सारे जो है वो 5G वाईफाई। किसी ने बोला मेरे को आई कैन लिव विदाउट माई वाइफ बट आई कैन नॉट लिव विदाउट वाईफाई। आजकल पूरा दुनिया मुट्ठी में, सब लोग पागल हो गया। लेकिन हमको अभी जनता से विप्लव करना चाहिए, परिवर्तन चेतना करना चाहिए। जिम्मेवारी कैसे लिया जाए? सबसे पहले उसको कहते हैं ना फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। अपना पेट खाली, खाली पेट ना भजन गोपाला, ले लो अपना कंठीमाला। अपना पेट में भजन नहीं, भोजन नहीं, इसलिए प्रचार भोजन का दक्कार। जब अपना पेट हो गया, जब दक्कार आ गया, वो उसको शक्ति कहते हैं, शक्ति परिणामवादा। और अगर आप खुशी हैं, भगवान ऐसा ज्ञान दे दिया। देखिए आश्चर्य की बात है, कहाँ मैं सदैव से बताता हूँ, मेरा मम्मी यूक्रेनियन है, मेरा पिताजी रशियन है, और मैं न घर का न घाट का, मैं तो भारतीयन हो गया। मैं अपना हृदय भारत में दे दिया। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई बहुत सारे प्रवचन देना, लाइक यूट्यूब, आजकल बहुत सारे क्रिएटर था इधर, ठीक है, अच्छा है, सुपर, सब हमारा दोस्त है। लेकिन आजकल लोग जो है देखना चाहते हैं वॉकिंग योर टॉकिंग, मेक योर लाइफ योर लेक्चर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं भाई हमारा जीवन हमारा प्रवचन है। और आप आध्यात्मिक जीवन में कृपया श्रील प्रभुपाद जी का उदाहरण देख लीजिएगा। आध्यात्मिक जीवन में आँख से मत दिखना, कान से दिखना चाहिए। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वसुधैव कथा रुचि यत् महत् सेवया विप्रम पुण्य तीर्थने सेवया। भगवान का पुस्तक साधु संगा, कितना बड़ा बड़ा भाग्य हमारा जो हम लोग आज भारतवर्षे जम्बूद्वीपे पवित्र स्थाने हम लोग एक साथ एकाग्रित आ गया और इतना जो है गंभीर विषय के बारे में बात कर रहे हैं। इसीलिए जिम्मेवारी तब हम ले सकते हैं जब हम लोग एक साथ हैं,
एक अंगुला कुछ काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत शक्ति होता है। इसलिए आज हाँ, जीवन तो सुख दुख मेला, सबको जाना पड़ेगा अकेला। हम लोग बोलते हैं अंत में समय तो बीत गया, लेकिन हम लोग कहते हैं जीवन में हमेशा स्मरण करना चाहिए, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जो सिंहासन चांद चले बांधे जान जंजीर। सबको जाना है, एक दिन तो जाना है हमको, लेकिन कहाँ जाना है? इसलिए हम लोग अभी संकल्प लेना चाहिए। कैसे हम लोग संकल्प ले लिया, जिम्मा लेना चाहिए सनातन धर्म करने के लिए। और आज मैं आपके लिए अंत में आखिरी कदम में मैं आपके लिए shall I do my wish? I compose one poem to everyone. Give a poem and you give the slogan. And I'll give the slogan. Shall I give you my wish today to everyone? भारतीय वासी, आप लोग पूरा पृथ्वी के लिए आशा है, सच बोल रहा हूँ मैं। पिछले 40 साल से ऊपर नीचे आगे पीछे घूमते पानी रामते योगी, हर देश में ऐसा देश नहीं है जो हम लोग नहीं गया। सब लोग जो है स्माइलिंग फेसेस क्राइंग हार्ट, बहुत दुखी संसार हो गया। लेकिन मैं आपके लिए एक शुभ कामना देना चाहता हूँ। इसी बहुत सुंदर जो है सम्मेलन के अंत में मैं आपके लिए एक हार्दिक इच्छा प्रकट करना चाहता हूँ। माय डियर फ्रेंड, wish to you. I wish today to you, my dear friend, be always joyful and always stand. Let Krishna's mercy be at all your strives when there is no one around in your life. And one more thing I really want to wish. You be yourself like in the water fish. With every breath, you try to serve the Lord. Destroy the darkness by the knowledge sword. From Lord devotees, don't be far away. They have the nectar and they know the way. How to please Shri Krishna, how to obtain His grace. They always happy at any time and place. Don't criticize all those who were lost. They are unfortunate and could not pay the cost. For those who are blind, you lend your helping hand. Krishna can see this and will understand. Do not give up the fight inside your heart. Be always joyful. Do your duty part. Be always happy looking at the sky, and to remember Krishna, always try. Don't worry profit or the loss. Surrender life to Supreme Boss, and far and wide try spread His fame by chanting sweet and holy name. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Bhagavan ki. Slogan for Jai them. Shri. And yes, and this is a slogan. It's my request and prayerful mood. एक अंगुला कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब हम लोग उदाहरण देते हैं, हम पहले आर्मी में था तो हमारा पास हमेशा उदाहरण है। हम लोग शील्ड एंड स्वॉर्ड, होल्ड शील्ड एंड स्वॉर्ड ऑफ स्पिरिचुअल वॉरियर, सनातन धर्म का सैनिक। शील्ड मीन्स श्रद्धा, होली नेम, इंटेलिजेंस, enthusiasm, love and discipline. And sword means talwar, sword, shastra, willpower, optimism, relationships, and dust from lotus feet of devotees, Padarajobhishekam. And hold means home of love and devotion. We have to create a strong hold as an international society and a Sankirtan Yagya. Hold, shield, and sword. Hold! Hold. You have to say very loudly, everyone, hold, H-O-L-D, hold together. Hold! Hold. Not loud enough. Srila Prabhupada has to hear this. Hold! 99% पीछे पीछे मैं देख रहा हूँ, नहीं बोल रहे हैं। अंतिम आखिरी बार एकदम प्रभुपाद जी को संतुष्टि के लिए हम लोग संकल्प लेते हैं, हमेशा एक साथ होना चाहिए। Hold! Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Grace Patri Prabhu. Thank you very much to all our distinguished dignitaries of Grace Stage with your wonderful thoughts. And I want to thank all of you for your patient listening. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. शीला प्रभुपाद की जय, उद्गार 2025 की जय, निताय निताय गौर.